بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ایک اور موضوع جو بہت زیادہ اختلافی ہے اور اس میں بھی امت میں بڑے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، وہ ہے بدعت کا. اس کو بدعت اردو میں کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے بدعہ. بدعہ با دال عین اس کا مادہ ہے جہاں سے وہ نکلا ہے. بدع یبدع کے معنی کسی چیز کی ابتدا کرنا ایسی جگہ سے جبکہ وہ کبھی تھی ہی نہیں، جس کا کوئی وجود نہ تھا اب اس کا وجود ہو جائے، اس کو نئے سرے سے گویا انوینٹ کرنا. تو انوینٹ کرنا یا انوویٹ کرنا، کوئی چیز نئی لے کر آنا، نیا آئیڈیاز لے کر آنا. حدیث میں جو اس کے لیے الفاظ آئے ہیں محدثہ کے لفظ آئے، احداث، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. بدع بھی فرمایا آپ نے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض. اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے ابتدا کرنے والے، یعنی بدع کرنے والے ہیں زمین اور آسمان کے بارے میں. سب سے پہلے نہیں تھی، بلکہ ہر چیز جو اللہ نے بنائی وہ پہلے نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے لغتاً اس کے معنی یہی ہے کہ کسی چیز کی ابتدا کی جائے، نتھنگنیس سے اس کو بینگ میں لے آیا جائے، اس کے وجود میں لے آیا جائے، جبکہ وہ نہیں تھا تو اب کچھ ہو جائے، اس کا وجود ہو جائے. صحیح ہے، یہ تو ہوئی لغوی اس کی تعریف. دین میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف ہے. اچھا، اس کے بارے میں امت کا اجماع نہیں ہے کہ ایک یہی انداز ہے اس کو سمجھنے کا. اگرچہ کچھ آئیڈیاز ہیں، بہت ساری چیزیں کامن ہیں، لیکن کچھ میرا گمان یہ ہے کہ زیادہ تر اس میں کچھ اصطلاحات کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ لفظی اختلاف ہے، بجائے اس کے کہ اس میں اصولی طور پر کوئی خاص بہت موٹا فرق ہو. لیکن دو موٹے ویوز ہیں، دو موٹی ڈیفینیشنز اور تعریفات ہیں، جس کی بیس پر لوگ اپنی ڈیفینیشنز کو لیتے ہیں اور دوسری ڈیفینیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں فتنہ فساد پھیلتا ہے، کیونکہ عوام الناس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں لیں اور انجوائے کریں، مزے کریں، کیونکہ شیطان ان کے آگے پیچھے پریشان کرتا ہے ان کو. نفس کا تزکیہ کرنے والے لوگ جن کو فکر و آخرت کی، جو علم میں اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور سیکھتے سکھاتے ہیں، وہ ان باتوں سے احتیاط کرتے ہیں. وہ علمی طور پر اختلاف رکھتے ہیں، اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ علمی اختلاف سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہ تو رحمت ہے امت کے لیے. اختلاف امت کا اس بیس پر ہے کہ ہمارا علمی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تعریف ہے، دوسرا گروہ کا بھی ہم یہ سمجھتے ہیں اس لیے اس کی تعریف ہے. ٹھیک، ایسے اختلاف سے کبھی امت میں نقصان نہیں ہوا، پریشانی نہیں ہوئی. اختلاف وہاں ہوتا ہے کہ جب نیچے والے یا ان کے شاگرد یا خود جو لوگ اس طرح کی باتیں لے کر چلتے ہیں اس کو پبلک میں لا کے اس کی بیس پر لڑائی جھگڑا کریں، ایک دوسرے کو غلط صحیح، کافر مشرک مبتدع اور تفسیق کریں، ان کی تبدیع کریں، ان کی تضلیل کریں، ان کی تکفیر کریں. یہ سارا فتنہ ہے. تب وہاں سے پریشانی شروع ہوتی ہیں. عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسی ایک آدھ بات بھی سن لیتا تو دوسرے کی طرف سے بدگمان ہو کر تعلق توڑ دیتا ہے. وہ اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتا کہ یہ چیز کس درجے میں اہم ہے. کیا اس کے نتیجے میں مجھے اس بندے سے تعلق توڑ دینا چاہیے، یا یہ کام اس کی گنجائش ہے، یا اگر یہ بدعت ہے بھی تو ایسی بدعت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ اسلام کے جو اہل سنہ والجماعہ کا دائرہ اس سے باہر ہو جائے. یہ بہت ساری چیزیں چونکہ وہ نہیں سمجھتا تو بہت ہی ریش ہو کے، بہت ہی اگریسو ہو کے، بہت ہی ریئیکشنری ہو کے اس کے خلاف فتویٰ دے دیتا ہے. اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی شناعت کے بارے میں، اس کے برا ہونے کے بارے میں اتنی وضاحت سے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے، اور امت اس کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہے کہ یہ تھوڑا سا جذباتی تعلق بھی یہاں ہے، تھوڑا سا یعنی ایک محبت کا تقاضا بھی، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ یہ ہے کہ آدمی بدعت سے اتنا ہی دور بھاگے. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا. انبیاء آتے رہے، سارے دین کو ہم تک پہنچا دیا انہوں نے. آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے دین کو ہمارے لیے مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. قرآن نے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تم پر دین کو مکمل کر لیا. وہ اتممت علیکم نعمتی، اے نبی، اور آپ پر ہم نے اپنی تمام نعمتیں مکمل کر دی، اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا، تکمیل ہو گئی ان کی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے ہم نے پسند کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین کو اسلام کے طور پر پسند کر لیا. اسلام ایز اے دین تمہارے لیے میں اس سے راضی، یہی دین ہے تمہارا. یہ پورا پیکج. پچھلے امتیوں کے ساتھ کیا ہوا، پچھلے نبیوں کی امتیوں کے ساتھ کیا ہوا؟
उन्होंने चीज़ों की एडिशन और सब्ट्रैक्शन अपनी मर्जी से, ये डाल दिया, ये निकाल लिया, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, यूं कर लो, यूं कर लो, चीज़ें आती जाती रही, तो नतीजा ये हुआ कि वो पूरा पैकेज अब ऐसा हो गया कि उसमें पैकेज में वो चीज़ रही नहीं जो नबी देकर गए थे। क्रिश्चियनिटी का या और दीगर मज़ाहिब का जो हाल है वो आप देख सकते हैं। इस्लाम को चूंकि आखिरी मजहब है, इसको महफूज रखना था, तो इसके लिए बहुत सारे जो ज़राए इख्तियार किए गए, उनमें से एक ज़रिया ये भी हुआ कि इसमें कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की इजाज़त आम आदमी को न दी जाए, किसी को भी न दी जाए। अल्लाह और उसके रसूल जिस चीज़ को जहाँ जैसे फैसला कर दें उसको वैसे ही रखा जाए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमा भी दिया, क्या एक हदीस में फरमाया, कुल्लु बिदअतिन दलाला, लंबी हदीस है, हर बिदअत गुमराही है। दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जो शख्स हमारे इस दीन में कोई चीज नई ईजाद करे जिसका इससे ताल्लुक न हो तो वो मरदूद है, वो अमल मरदूद है, वो अमल रद्द कर दिया जाएगा। मुस्लिम शरीफ की, बुखारी की भी हदीस इसी तरह से मौजूद है। बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं। अच्छा, दीन की प्रिजर्वेशन के लिए एहतियातन कुछ लोग फिर अब बहुत ज्यादा तशद्दुद के साथ इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, चाहते कोई एडिशन ना हो जाए गलती से भी। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीते वाले एटीट्यूड के साथ कि चूंकि पिछली नबियों की तालीमात में खराबियां हो चुकी हैं, अब हमें और एहतियात करना चाहिए। तो लेकिन आपको ये समझना चाहिए, वो तो जो शख्स ऐसा कर रहा हो और उसका अपना अंदाज जो भी हो, हमें या जो मुतदिल लोग हैं उनको ये देखना चाहिए कि ये जो लोग इस सख्ती के साथ पेश आ रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, उनकी नीयत क्या है, वो चाहते क्या है इसके नतीजे में, कि इसके नतीजे में वो अल्लाह और उसके रसूल के किसी हुक्म को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या वो उनकी कोशिश है, अगर से वो गलत हो या सही हो, इसका तो फैसला बाद में करते हैं, उसकी गुफ्तगू के दौरान आ जाएगा, लेकिन उनका जज्बा क्या है, वो किस अंदाज से इस बात को लेकर चल रहे हैं। तो अगर हम ये समझना शुरू कर दें कि दूसरा जब ये बात कहता है, तशद्दुद भी करता है, अगरचे गलत है तशद्दुद, हमें इसको सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मुसलमान, वो लोग के जो अल्लाह की राह में चलना चाहते हैं और अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहते हैं और उम्मत में जोड़ पैदा करना चाहते हैं, लोगों में ताल्लुक पैदा करना चाहते हैं, मोहब्बतें पैदा करना चाहते हैं, उनको फिर ये चाहिए कि वो इतनी वसअत रखें। उसका तरीका ये होता है कि पहले ये देखें और कोशिश करें जानने की कि वो बंदा जो ये बात कह रहा है, अगरचे गलत कह रहा है, उसके पीछे इसका महर्रिक क्या है, किस वजह से उसको तहरीक हुई ये काम करने की, उसके पीछे उसका जज्बा क्या है। जाहिर बात है, जो शख्स बड़ी तशद्दुद के साथ हर चीज को बिदअत करार देता है, और उसकी मैं अभी तफसीलात आपको बयान करूंगा, आप उससे इत्तफाक करते हो तब भी और इत्तफाक ना करते हो तब भी, उसकी नीयत पे तो आपको शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी इजाजत शरीयत ने हमें नहीं दी। आपको ये देखना चाहिए कि वो किस जज्बे से कहता है। यकीनन ये जज्बा उसका शैतानी तो नहीं है, शैतानी इस तौर पे तो नहीं है कम से कम कि वो चाहता है कि दीन में कोई प्लान करके लोगों को खुराफात में और खराबियों में डाल दिया जाए, ये कर दिया जाए। वो तो उसको लिमिट कर रहा है अपने तौर पे, ये समझते हुए कि ऐसा करने से शायद दीन में रास्ते खुल जाएंगे खराबियों के। तो जब हम तो एक तरफ अगर हम ऐसा सोचने लगेंगे तो हमें नजर आएगा कि यार वी नो वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, कि कहां से क्या बात कहना चाह रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा, इसकी बीमारी की वजह पता चल गई। अगर हम उससे इख्तिलाफ करें तब भी, और जो नहीं करते वो ठीक है। दूसरी तरफ लोग कहते हैं नहीं, देखो जो हदीस है, सारी अहादीस को अगर सामने रखोगे, एक एक हदीस को लेते जाओगे तो मसला पैदा होगा, सारी चीजों को सामने रखो तो फिर तुम्हें ऐसा समझ में आएगा। ये है सही तारीफ इसकी। तो इस बुनियाद पर उम्मत के अंदर दो तारीफें हैं। अच्छा, उस दोनों तारीफ में बताता हूँ, उससे पहले आप लोग के जहन में क्या तारीफ है, कोई एक साहब बस बता दें मुझे, ताकि मुझे अंदाजा है कि आपके जहन में क्या है बिदअत की तारीफ। बिदअत किसको कहते हैं? बिदअत वही जो आपने बदी उस समावात से, ऐसी चीज जो जिसका प्रिंसिपली इस्लाम में ताल्लुक ना हो, सही, और हम नई इजाद कर दें, लेकिन जिसके बेसिस आपको मिलते हैं, प्रिंसिपल्स में रहते हुए आप कुछ करते हैं, दिस इज माय कांसेप्ट। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। और कोई जो चीज़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में प्रैक्टिस ना हुई हो, और वो चीज़ को अब हम दीन में शामिल करके इस शिद्दत से और इस नीयत से करें कि दीन का हिस्सा बन गई है और इसे ना करने पे गुनाह मिलेगा, तो वो बिदअत है। माशाल्लाह, सामने दो वाज़ेह से व्यूज आ गए हैं ना, और इसी तरह की ही व्यूज है। एक व्यू, और ये दोनों मुतदिल है, और दोनों ही बातें मुतदिल और दोनों ही हिस्सा है उस तारीफ की जो असल में बिदअत की तारीफ है, जो उम्मत के अंदर समझी गई है।
एक कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग है अवाम उन्नास की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मैच्योर और समझदार लोग हैं, तो आपकी शायद वो बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपने सुना होगा। लोग इसी तरह से कहते हैं वो काम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न किया बिदअत, बस फुल स्टॉप, आगे पीछे कोई बात नहीं। जो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न किया हो, यानी कुरान में ना हो और हदीस में ना हो, वो शख्स वो काम वो बिदअत हो जाएगा। जाहिर बात है ये बिदअत बहुत ही ये डेफिनेशन बिदअत की जो है बहुत ही ज़्यादा नाक़िस है। उसकी वजह यह है कि अगर यहाँ पर रोकेंगे इस बात को तो फिर खुद सहाबा कराम ने बहुत सारे अमाल ऐसे किए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं हुए थे, सही है ना। तो जाहिर बात है इसमें तो कोई जान नहीं, तो इसीलिए ज़्यादा मैच्योर लोग फिर ये कहते हैं कि नहीं, वो काम जो पहली 3 जनरेशंस में नहीं हुआ, सहाबा में नहीं हुआ यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, ताबईन में और तबा ताबईन में नहीं हुआ, क्योंकि वो दीन को जानते थे, उन्होंने जिन चीज़ों को नहीं इख्तियार किया एहतियातन, वो तो ये नहीं कहते, वो ये कहते वो बिदअत है। अगर ये डेफिनेशन भी ठीक नहीं है बिदअत की, ये डेफिनेशन भी ठीक नहीं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन ये एक ज़बरदस्त कायदा कुल्लिया हो सकता है, ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि आदमी जब भी कोई काम कर रहा हो उसका मयार ये हो, वो ये देखे कि ये काम मुझसे पहले जो मैं अब करने जा रहा हूँ नया, मुझसे पहले किन किन लोगों ने किया। सहाबा में से कुछ लोगों ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह काम ही आसान हो गया। हदीस में न भी हो लेकिन सहाबा कराम का अमल है, काम वहाँ नहीं है, इमामों में से किसी बड़े इमाम ने किया, ताबईन में से, तबा ताबईन में से की, उनमें से भी किसी ने अगर नहीं किया तो शुरू की जनरेशन में 2-4 लोगों ने, कुछ लोगों ने किया, किसी ने भी नहीं किया, तो 1400 साल में किसी ने न किया, आज मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ, तो अगर लग भी रहा हो, मेरा दिल खालिस भी हो, मैं महज अल्लाह के लिए ही कर रहा हूँ और मुझे लग भी रहा हो कि नहीं दीन में इसकी असल मौजूद है, तब भी एहतियात का तकाजा क्या है कि आदमी पीछे। वजह उसकी है कि उसकी क्या औकात है, इल्म में और तकवा में इन बड़े लोगों के मुकाबले में उसकी क्या औकात है। नहीं, वो उसको बिदअत ना भी समझता हो या समझे, ये कतई नज़र इससे एहतियातन उसको इस तरह की चीज़ों से अगर वो वन ऑफ कर रहा है तो, या फिर उसको ऐसा सोच के कर रहा है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे गुनाह मिलेगा। हाँ, वो उसकी तरफ अभी आते हैं, उसकी तरफ अभी आते हैं। तो बिदअत की चूँकि शनाअत बहुत ज़्यादा, उसकी ख़राबी बहुत ज़्यादा वजाहत से बयान फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो ज़ाहिर बात है ये ख़राबी बहुत बड़ी है, आदमी क्यों इस तरीके की किसी चीज़ में पड़े। अच्छा, इसमें पहले एक बात और, फिर बिदअत की 2 चीज़ें, अक़ीदे के अंदर भी बिदअत होती है और आमाल के अंदर भी बिदअत होती है। तो अब इसकी जो 2 डेफिनेशन है, 2 मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको इंशाअल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये एरिया जो है बहरहाल बहुत आसान नहीं है कि 2 टोक अल्फाज में आदमी एक बात ये कह दे ब्लैक एंड वाइट और एक क्लियर। वजह उसकी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजाहत के साथ कैटेगोरिकल कोई ऐसी तारीफ मौजूद नहीं है कि जिससे पता चले कि ये ही बिदअत है, इसके अलावा नहीं, बल्कि ऐसा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई और आपने उनको नहीं कहा बिदअत। उसकी भी मिसालें आपको दूंगा। इनमें से जो एतिकादी बिदअत हैं, जो अकीदे के अंदर हैं, वो बिदअत आदमी को अहले सुन्नह वल जमाअत से बाहर कर देती है। एतिकाद के अंदर जो अकीदे में बिदअत, मुअतज़िला मिसाल के तौर पर, उनके अकायद में बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से वो अहले सुन्नह वल जमाअत से बाहर है, गोया जहन्नम। मुअतज़िला एक फ़िरक़ा पहले गुजर चुका है, ख़वारिज इसी तरह का एक फ़िरक़ा है जिनके कुछ असरात अब भी लोगों में पाए जाते हैं, जो हर गुनाह को कुफ्र से मिला देते हैं। तो ऐसे लोग बड़े तशद्दुद करने वाले लोग, और इसी तरीके से अहले तशय्यो में कुछ लोग ज़रूर इस तरह के हैं कि जिन्होंने बहुत सारी एतिकादी बिदअत ईजाद की हैं। ये नहीं कह सकते सहाबा में अगर उनका सबको दुरुस्त मानते हो, कम से कम उनसे नफरत न करते हो, बराबर का रखते हो, या सैयदना अली को ज़्यादा फजीलत देते हो, तो ठीक, इसकी बेस पे वो एतिकादी तौर पर अहले सुन्नह वल जमाअत से बाहर नहीं होते, बल्कि वहाँ होते हैं जब वो कुछ नए अपने एतक़ादात लेकर आते हैं। इमाम का एक अक़ीदा जो उनका है ना, मासूमियत का उनकी जो एक तसव्वुर है जी, तो जो भी हो, मतलब वो तफसीर वो मौजूद नहीं है इंशाअल्लाह ताला। मैं खाली कहना चाह रहा हूँ कि एतक़ाद के अंदर भी उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो उनको अहले सुन्नह वल जमाअत से बाहर करती हैं। तो बिदअत अमली भी करते हैं बहुत से लोग और एतक़ादन भी। तो एतक़ाद वाले तो बड़े क्लियर कट हैं कि वो अहलुल बिदअह में से हो जाते हैं। इमाम शाफ़ी ने
रहमहुल्लाह एक डेफिनेशन इसकी दी, और एक डेफिनेशन दूसरे स्टाइल की जो है वो इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की है। तो इस तरीके से दो मोटी मोटी डेफिनेशन चली जाती है, और ये लगता है ऐसा ही कि ये अल्फाज ही का इख्तिलाफ है, असल में हकीकत में इख्तिलाफ नहीं ज़्यादा। तो इमाम, अच्छा एक पहले उससे पहले डेफिनेशन, एक तो हमने ये बात की कि बिदअत हर वो नई चीज़ है जिसकी उससे पहले कोई प्रेसिडेंस मौजूद ना हो, पहले उससे कोई मिसाल मौजूद ना हो, जिसकी असल शरई डेफिनेशन लेकिन वही है जो आप लोगों ने दोनों ही ने उसकी तरफ इशारा किया कि जिसकी शरीयत में असल ना हो, वो एक्शन बज़ाहिर किया हो या ना किया हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने और फर्स्ट जनरेशन से, लेकिन उसकी असल दीन में मौजूद हो तब तो वो बिदअत नहीं होगी, और अगर असल ही मौजूद नहीं है तब वो बिदअत बन जाएगी। उसकी मिसालें भी आएंगी। और कोई भी अमल बिदअत उस वक्त बनता है जब उसके अंदर तकर्रुब नियत हो, इसके नतीजे में मैं अल्लाह के करीब हो जाऊंगा, अल्लाह के करीब हो जाऊंगा। और दीन के अंदर तकर्रुब इसलिए ज़रूरी है कि अब मैंने एक कैमरा है, ये टीवी है, ये नया कपड़ा है, ये लाइट है, अब ये सारी चीज़ें जो बिदअत नहीं होंगी, सही है ना, क्योंकि इसका अल्लाह से तकर्रुब हासिल करने से कोई ताल्लुक नहीं, तो हमारे डे टू डे यूसेज है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे यानी जो दुनिया के जो मामलात हैं उनसे इसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये सारे काम करके आप अल्लाह के करीब होने की फिक्र नहीं करते, बल्कि ये आप नॉर्मल डे टू डे मुबाहात में से है को कहते हैं। सो अस्लुल अशियाई इबाहा, हर चीज़ जो असल है उसकी वो इबाहत मुबाहा जायज़ है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं और एक नॉर्म के तौर पर, ठीक है, और उसमें जो है वो कोई क्लियर कट एविडेंस होना चाहिए। इमाम शाफी ये कहते हैं कि बिदअत की दो हैं किस्में, अलबिदअतु बिदअतान या दरबान, कहते हैं कि बिदअत महमूदा है और मज़मूमा। महमूदा वो है कि जो तारीफ वाली, इसी को बिदअत हसना क्या कहा बहुत से लोगों ने, इसी को, और जो मज़मूमा है जिसमें की मजम्मत आई है वो रिजेक्टेड वन जो है वो कौन सी है, बिदअत सय्यिआ कहते हैं उसको, सही ना, जो कि खराब है, गुमराही वाली है। जो कुछ सुन्नह के मुताबिक हो वो महमूदा है, जो सुन्नह के खिलाफ हो वो मज़मूमा है या बिदअत सय्यिआ है, बुरी गुमराही, बुरी बिदअत है, गुमराही है, और वही असल है जो गुमराही है। तो बिदअत सिर्फ सुन्ना के कंपैरिजन में ही मान जाती है। एक राय ये है कि बिदअत जो है असल में सुन्नह की ऑपोजिट है, उसकी उल्टा है, उसकी जिद है, तो जब उसकी जिद है तो किसी सुन्नत के खिलाफ अमल होगा तब वो बिदअत बन जाएगी। अगर कोई चीज़ सुन्नत के खिलाफ नहीं हो और फिर खाली वो लगती डिफरेंट हो तब वो सवाल किया जाएगा कि ये बिदअत है कि नहीं, सही है, तो उसमें असल होना चाहिए। अब वो जो इमाम शाफी जब ये दो राय देते हैं तो उसके बारे में फिर वो कहते हैं और दलाइल भी देते हैं, क्योंकि एक जो राय है लोगों की, मिसाल के तौर पर जब हम ये कहते हैं ना कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही, तो हर के मायने के हर एब्सोल्यूट, तो इसके बारे में अगर आप कुरान में गौर करें तो कुरान में बहुत सारी आयत ऐसी हैं जहाँ पे ये कुल आया है कुल के तौर पे, लेकिन उसके मायने बाज के हैं, इसके एब्सोल्यूट मायने नहीं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़ा, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बहुत अच्छे हुस्न पे बनाया, बहुत अच्छे हाल में बनाया, खूबसूरती के हिसाब से, खलकत उसकी खूबसूरत है कि जहन्नम खूबसूरत है, कि शैतानी आमाल खूबसूरत है, नहीं। इसका मतलब है यहाँ हर चीज से मुराद, कुल से मुराद यहाँ पर एवरीथिंग नहीं बल्कि एवरीथिंग विद इन द कॉन्टेक्स्ट, जिस गुफ्तगू की बात हो रही है, जिस मौजू पे हैं हम, सही है। तो कुल बात के लिए भी आता है कि कुल का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि कुल हमेशा ही एवरीथिंग एब्सोल्यूट सेंस में है, कभी होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता। यही जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाबा कुल्लि शै, दोबारा कुल, कि जब उन्होंने भुला दिया उस चीज को, जबकि उनको याद दहानी कराई गई थी, तो खोल दिए हमने उन पर दरवाजे हर चीज के, यानी दुनिया उन पर वसी कर दी, अल्लाह ने खोल दिया कि वो दुनिया में पड़े रहे, गुनाहों में पड़े और फरावानी उनको हो जाए, और वो अल्लाह ताला से दूर होना चाहते थे तो और दूर हो जाए, ताकि उनकी रस्सी हो अल्लाह ने दराज कर दी, ढील दे दी उनको। तो अब ये कहा जाए कि हर दरवाजा खोल दिया अल्लाह ने, तो हर दरवाजे से क्या मुराद है कि जन्नत का दरवाजा भी खोला था, रहमत का दरवाजा खोला था,
हर दरवाजे से हर दरवाजा मुराद नहीं है, ठीक है ना। और जब हम ये कहते हैं कि कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर चीज गुमराही है, तो कुल्लु बिदअतिन शरइयतिन, जो ऐसी बिदअत जो शरीयत के अंदर निकाली जाए वो दलाला है। वरना हर बिदअत अगर गुमराही हो और ये बिदअत लुगतन हो तो उसका मतलब क्या हुआ, कैमरा भी गुमराही है ना, घोड़े की जगह आपने गाड़ियां इस्तेमाल करना शुरू कर दी, ये भी गुमराही होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं, सब जानते हैं कि दीन की चीजों में हम बात कर नहीं रहे, हम दीन की चीजों में बात कर रहे हैं, दुनिया की चीजों में हम बात कर ही नहीं रहे। वो चीज इससे अल्लाह का तकर्रुब हासिल नहीं करना चाहते हम, एक दुनियावी एक जरूरत के लिए चीज पूरी कर रहे हैं, उसमें बिदअत का कोई तसव्वुर ही नहीं। तसव्वुर तो होगा वही, यानी बिदअत होगी वहां पर जहां पर हम अल्लाह के तकर्रुब के लिए यानी दीनी अमाल में ये कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ये तो खुद कुल के अंदर ये बात हो गई कि ये कुल एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि कुछ इसमें तफसील है, कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, सही। सहाबा कराम की जिंदगी को अगर देखें तो उसमें बहुत सारे वाकयात ऐसे नजर आते हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारे एक्शंस किए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत, इत्तिला या उनसे मशवरा किए बगैर, और उससे पहले। अगर उनके जहन में भी ये तसव्वुर होता कि मुझे कोई काम भी जो हदीस में आ ना गया हो वो नहीं करना, तो ऐसा करना उनसे यानी बईद है कि वो ऐसा करते हैं। ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उनसे कहा। एक वाक़या जैसे कि आपने सुना होगा बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में, बुखारी मुस्लिम दोनों की हदीस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बिलाल तुम ऐसा क्या अमल करते हो कि मैंने तुम्हारे कदमों की चाप जन्नत में सुनी जब मैं मेराज पर था, क्या ऐसा काम करते हो। जब आप मेराज से वापस आए, अल्लाह के रसूल मुझे तो कोई खास अमल नहीं है जहन में, लेकिन जब भी वुजू करता हूँ तो उसके बाद 2 नफिल पढ़ता हूँ, जिसको तहियतुल वुदू कहा जाता है। वुजू पकड़ के 2 नफिल पढ़ता हूँ, जब भी वुजू करता हूँ उसके लिए 2 नफिल पढ़ देता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करने। नफिल तो कभी भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन ये वुजू के साथ 2 नफिल पढ़ना खास तौर पर ज़ाहिर बात है वो सवाब के लिए करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा बताया था इससे पहले नहीं। क्या बिलाल की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मुझे कोई चीज़ नहीं करनी जब तक कि मुझे पता ना चल जाए कि हदीस में है या कुरान में? नहीं, बल्कि उन्होंने अपने तौर पे एक नया काम दीनी अच्छा करने की कोशिश की, जिसकी शरीयत में असल है 2 नफिल पढ़ने की, वैसे कोई मुमानात नहीं है, किसी भी वक्त कर लिया जाए। उन्होंने दीन का उसको हिस्सा नहीं बनाया, ना उसको लाजिम समझा, बल्कि ना जाके लोगों को बताया, और ये भी नहीं किया कि जो नहीं करते उनको गुमराह कहना शुरू कर दिया। अपने तौर पर एक पर्सनल अमल उन्होंने किया, उसको उन्होंने खुफिया ही रखा, अपने तक रखा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई और आपने उस पर डिस्कशन किया उनसे, तब उन्होंने इस बात को खोला। आपने फरमाया माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम, मना नहीं किया उनको, नकीर नहीं की। अब ये सुन्नत इस दर्जे में बन गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीरन इसको सुन्नत बना दिया। तकरीर कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई अमल हो, आप उसको अगर गलत था तो रोका नहीं, ठीक था तो होने दिया और के खिलाफ नहीं बोला, सही है ना। वरना ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसको रोकते या उसकी तस्वीर करते, तो आप खामोश अगर रहे इसका मतलब है कि वो अमल जायज़, अब वो ओके हो गया, वो सुन्नत बन गई तकरीरन, तो ये अमल सुन्नतन, ये तकरीरन सुन्नत बन गया। लेकिन बिलाल को तो नहीं पता था कि ऐसा होगा फ्यूचर में, उन्होंने तो अपनी मर्जी से एक चीज़ की थी। अल्लाह के रसूल ने उनके इस कॉन्सेप्ट को नहीं कहा कि गलत है, तो ये इशारा मिलता है कि ऐसा नहीं। दूसरा वाक़या खुबैब का आपने सुना होगा। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े एक सहाबी थे, मुसलमानों में मदीना ये जो है वो मक्के में वहाँ के मुशरिकीन के हत्थे चढ़ गए। अपने साथ 2-3 सहाबा इनके साथ साथी थे, उनकी खबरगिरी वगैरह करने पर मुतय्यन थे मदीने में रहते हुए, और पकड़े गए, उनके नरगे में आ गए और उन पर फिर जो है उनको पकड़ के बाकायदा कत्ल करने के लिए ले गए ये लोग अपने। और तो जब शहीद किए जाने वाले थे तो उन्होंने कहा मुझे 2 नफिल की इजाज़त दे दो। उन्होंने फिर अपना जो है वो 2 नफिल पढ़ी और 2 नफिल मुख्तसर पढ़ के आ गए। कहेंगे अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि तुम ये सोचोगे कि मैं मौत के डर से अपनी नमाज़ों को, ये नमाज को लंबी कर रहा हूँ, तो मैं इसको काफ़ी लंबी पढ़ता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। तो ये 2 नफिल शहादत से पहले पढ़ना, कि अल्लाह के रसूल ने इससे पहले कोई हदीस बयान की थी? नहीं। सहाबा का कोई अमल कुरान में हदीस में कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इस सहाबी ने, बल्कि इन्होंने तो, उनको तो बाद में भी नहीं पता चला कि अल्लाह के रसूल को ये बात पहुँच जाएगी और आप उसकी तस्वीर करके इसको तकरीरन सुन्नत बना देंगे। इन्होंने तो अपने तौर पे एक अमल किया, यानी इनकी अंडरस्टैंडिंग भी ये नहीं थी कि कोई काम जो ना हुआ हो बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसको करना या सोचना उसके बारे में ऐसा करना वो बिदअत हो जाएगा। नहीं, इसलिए कि 2 नफिल जनरली पढ़ना जायज़, कभी भी पढ़ा जाए अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए। चूँकि इन्होंने उसको एक्स्ट्रा अपने तौर पर मुतय्यन करके दीनी नहीं समझा, बिदअत नहीं।
ठीक है। एक और साहबी हैं रिफा इब्न राफि, ये भी बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा नमाज पढ़ा रहे थे, आपने फरमाया जब आप रुकू से उठे आपने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सहाबा ने पीछे अपना पढ़ा रब्बना लकल हम्द या रब्बना व लकल हम्द, दोनों रिवायतों में यानी रब्बना लकल हम्द भी पढ़ना ठीक है, रब्बना व लकल हम्द भी पढ़ना ठीक है। फिर एक सहाबी है जो सहाबी है, इन्होंने फरमाया आगे उसके इजाफा किया हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। नमाज खत्म हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि भाई किसने कहा, खड़े हो गए। मैंने, आपने फरमाया मैंने नमाज में देखा कि आसमान से 30 से ऊपर फरिश्ते लपकते हुए आ रहे हैं और उनमें से हर एक इस बात पे झगड़ रहा था कि तेरी इस नेकी को वो लिखेगा। तो इतनी बड़ी नेकी तूने की, बड़ा अच्छा काम किया, अल्लाह से बड़ा खुश है, फरिश्तों ने इस नेकी को लिखा। अब ये नेकी अल्लाह के रसूल ने बताई थी नहीं, है ना, लेकिन वहां पे क्या था, ना इन सहाबी ने इसको दीन का हिस्सा समझा, ना इसको सुन्नत समझा, अपने तौर पर एक अच्छा काम उनको लगा, उन्होंने कर लिया। तो ऐसे किसी अमल को, इसकी वजह यह कि अल्लाह के कलमात तस्बीह के करना नमाज के अंदर, हमद को बयान करना अल्लाह ताला की नमाज के अंदर, और ये तो फर्ज नमाज की बात हो रही जमात के अंदर, उस तक में उन्होंने एक काम कर दिया। अगरचे हम इनकरेज नहीं करते कि लोग ऐसा करें, कोई चीज़ इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह कि बहरहाल उस कॉन्सेप्ट की नफी होती है कि कोई काम भी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने न किया हो या अल्लाह के रसूल ने न किया हो उसको बिदअत करार दिया जाए, झोल है इस बात में, ये बात मजबूत नहीं है। लेकिन बहरहाल जो अपनी राय रखना चाहे रखे, उसको इजाज़त है, लेकिन दूसरों को क्रिटिसाइज न करें। सैयदना उमर के बारे में फिर आपने एक वाक़या सुना होगा कि तरावी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग पढ़ते थे, आपने 3 दिन तरावी पढ़ाई, उसके बाद फिर लोग इंतज़ार करते रहे, आप नहीं आए बाहर। लोग जब काफ़ी इंतज़ार कर चुके, लोगों ने बुलवाया अल्लाह के रसूल बिलाल, आपने फरमाया मुझे भाई तुम लोग जाओ, ये अपना अपना पढ़ो, मुझे ख़तरा है कि तुम्हारा शौक़ देख के लोग जोक आके बैठ जाते थे, तरावी पढ़ेंगे अल्लाह के रसूल के साथ, कि तुम लोग जो है वो तुम्हारे शौक़ को देख के मुझे डर लगता है कि कहीं अल्लाह ताला जो है इसको फ़र्ज़ ना कर दे। अगर एक फ़र्ज़ होगा तो अल्लाह ताला अंडरस्टैंडिंग ये है कि सहाबा को तो मशक्क़त नहीं होगी, वो ईमान में इतने ऊंचे थे, बाद में उम्मत के लिए मशक्क़त हो जाएगी, 5 पढ़ना लोगों के बाद वालों के लिए मुसीबत हुई भी है, ये एक इजाफी हो जाएगी। तो अल्लाह के रसूल क्योंकि करीम है, मोहब्बत करने वाले हैं, अपनी उम्मत के लिए रहमत है, तो आपने वहाँ पर उसको रोक दिया कि नहीं खुद पढ़ोगे। तो लोगों ने अपने अपने तौर पर 2 इधर पढ़े, 4 इधर पढ़े, टोली बना के इंडिविजुअल लोग पढ़ते थे, कोई घर में कोई जिसको जहाँ जैसी सहूलत हुई, क्योंकि रमज़ान के क़याम की बड़ी फजीलत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में भी ये हुआ, हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने के इब्तिदाई हिस्से में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं क्या देखता हूँ कि लोग कुछ इधर अच्छा नहीं लगता, क्यों इनको एक इमाम के पीछे जमा कर दिया जाए, यानी एक इमाम क़िराअत करे, पीछे लोग सब सुने, उसके जब सबको पढ़ना ही है साथ ही क्यों न पढ़े जमात के साथ। अब उन्होंने उबई इब्न काब जो बहुत बड़े कुरान के कारी भी हैं, बड़े इमाम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान में सबसे ज़्यादा जानने वाली यही, उन 4 लोगों में भी इनका शुमार होता है कि जिन्होंने कुरान का सबसे ज़्यादा रखा। बहरहाल तो उन्होंने उनको कहा कि भाई अब आप भाई उनको पढ़ाया कीजिए, वो पढ़ाते तरावी, सारे लोग पीछे पढ़ते, तो उन्होंने देखा, उसको बड़ा खुश हुआ, फरमाया कि निअमत बिदअतु हाज़िही, क्या अच्छी बिदअत। किसी ने कहा कि तो बिदअत है, तो उसके जवाब में आपने फरमाया कि तो बड़ी अच्छी बिदअत है। तो इससे भी यानी अगरचे बिदअत लग रही है तुम्हें, लेकिन ये कि ये इस्तिलाहन तो बिदअत है, यानी कहा जाए कि नया काम तो है कि इस तरह एक जमात एक इमाम के पीछे 30 दिन तक 20 रकातें हैं, जो भी सूरत है, ऐसा पहले नहीं हुआ, लेकिन शरान बिदअत नहीं है, अच्छी बिदअत है। तो इस लिहाज से अब वरना अगर वही बात कही जाए कि हर चीज़ जो पहले न की गई हो तो उसको एक्सटेंड करते हैं फिर बाद लोग कि नहीं पहली 3 जनरेशन्स तक। अगेन ये बात भी जैसा मैंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा वजन नहीं है, वजह उसकी है कि पहले 3 जनरेशन तक तो ठीक है, फिर उसके बाद मदरसे वगैरह, तो उसके बाद तामीर होना शुरू है। इसका मतलब है कि मदारिस में पढ़ना पढ़ाना, कि वो मदरसे में अल्लाह की राह में पैसा देना मदरसे के लिए, कि वो तकर्रुब का ज़रिया नहीं, उसमें आलिम बनाना, बाकायदा आलिम का कोर्स कराना, इल्म हदीस आ जाना, इल्म फ़िक़्ह आ जाना, खुद इमाम बुखारी की फ़िक़्ह का जमा करना। इमाम बुखारी तो न ताबी थे न तबा ताबी थे, और भी उनके 100 साल बाद के लोग में से, है ना, तो ये सब बिदअत हो गई जब पहले लोगों ने नहीं किया। इसी तरीके से कुरान के अंदर ये आराब लगाना, ज़बर ज़ेर पेश करना, और कुरान के ये 30 अज्जा बना देना या हिज़्ब बना देना ताकि इसको पढ़ने में आसानी हो 1 महीने में या 7 दिन में। इसी तरीके से ट्रांसलेशन करना कुरान की, और अब इसको प्रेस में छापना, पहले हाथ से लिखा जाता था, आपने किताबत करके कंप्यूटराइज करके निकालना,
اور مختلف اسٹائل میں اس کی رائٹنگیں باقی ذرا ہے. اور اسی طریقے سے اصول الحدیث اصول الفقہ ان کے ڈیولپمنٹ, تجوید اور اس کے قراءت کے اصول جتنے آ گئے وہ سب یہ تو پہلی جنریشنز میں نہیں ہوئے, تو بعد میں ہوئے سب چیز. اور آج کل جو زیادہ کامن ہے چیز وہ جمعے کی نماز, لاؤڈ اسپیکر بھی ہے, اور جمعے کی نماز میں جو خطبہ دیا جاتا ہے انگریزی زبان میں, یہ تو صحابہ کیا تابعین کیا تابع تابعین ان کے بعد والے کیا تو 1400 سال میں کبھی نہیں ہوئے, تو پچھلے 30 40 20 30 سالوں سے ہو رہا ہے. اس صدی میں جو شروع ہوا یہ کام, خطبہ انگریزی میں دیتے ہیں, شروع عربی میں کر کے, اس کو تو نہیں بدعت کہتے. کیوں؟ یہ کس نے کیا اس سے پہلے؟ اور یہ بھی نہیں تھا کہ صحابہ کرام کبھی عرب سے باہر ہی نہیں نکلی, یعنی ایران جب گئے تو ایران میں کیا فارسی میں خطبہ دیتے تھے, یا اسی طریقے سے جب ایجپٹ گئے تو ایجپٹ والے اس وقت سے عربی بولتے تھے کیا, ہے نا. ملائیشیا, انڈونیشیا, انڈیا, ان جگہوں پہ جا کے لوگوں نے جب اسلام کی تبلیغ کی ہے تو کیا وہاں پہ خطبے ان زبانوں میں ہوتے تھے؟ جب یہ اب سب کچھ شروع ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت بات کی چیز ہے, اس کو بھی بدعت ہونا چاہیے. اور یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے کیا ہے, لیکن نہیں بدعت ظاہر بات ہے, اس کو کوئی نہیں کہتا بدعت ہے. اگر اختلاف رائے ضرور ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں, ایسا کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں, لیکن بدعت کے درجے میں نہیں. تو نہیں, وہ تو اکثر کے نزدیک تو نہیں, اکثر کے نزدیک تو نہیں. بعض لوگ احتیاطاً یہ کہتے ہیں, کچھ روایت میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ اپنی آوازوں کو بڑھانے والے ان کے ناپسندیدگی کا جو ہے وہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی طریقے سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ مکبر ہوتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں, تو آپ سنت کے زیادہ قریب ہوں گے کہ پیچھے مکبر ہو اور وہ اس طریقے سے نماز پڑھائے. بہرحال لیکن فی زمانہ ظاہر ہے اس کی ضرورت ہے, تو اکثر اکابرین علماء کے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اکثر مساجد میں لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھایا جاتا ہے. کچھ جگہ بہت ہی گنتی کی چند جگہوں پر ابھی تک اس طرح سے لوگ جو ہے فکر کرتے ہیں. تو ابن العربی جو مالکی اسکالر ہیں بہت بڑے, ان کی رائے اسی طریقے سے ابن حزم, ان کی بھی رائے یہ ہے کہ بدعت کی اچھی اور بری یہ دو قسمیں ہوتی ہیں. ابن الجوزی کی ہے, ابن اثیر الجزائری اور امام شوکانی, تو یہ ائمہ ہیں جن کے نزدیک بدعت کی اس طرح سے تقسیم ہے, اور وہ کہتے ہیں اچھی اور بری کی تقسیم. ایک رائے تو یہ ہے. امام ابو حنیفہ کی کوئی رائے اس بارے میں بہت تفصیلی رائے نہیں, حنفی فقہ کی ضرور رائے ہے, وہ آئے گی اس کی بات. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, پھر ان کی ایک ڈیفینیشن ہے, وہ یہ کہتے ہیں بدعت کے چونکہ لفظ یہ آ گئے ہیں کلو بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, تو اس کو ایز اٹ از لیا جائے اور ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا جائے. اور جس چیز کی ضرورت ہو معاشرے میں, مصلحہ مرسلہ اس کو کہتے ہیں, کہیں لوگوں کی کہتے ہیں نا کہ مفادات کے لیے, فائدے کے لیے, کسی عام لوگوں کا کوئی کنسرن ہو, اور اس کنسرن کو حاصل کرنے کے لیے, کوئی پرابلم ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے, اس کو اچیو کرنے کے لیے ٹارگیٹ کو اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ ٹھیک ہوگا. مثال کے طور پہ خطبے سے مطلوب یہ ہوا آپ کو کہ لوگ بیان سن سکیں, بات سمجھ میں آئے, ان کو جو امام کہہ رہا ہے اگر اس کو عربی نہیں آتی تو عام فہم ہو جائے گا. تو اس لیے چونکہ وہاں پہ یہ مقصد حاصل ہو جائے گا تو گنجائش, اس کو ہم بدعت نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے یہ مصلحہ مرسلہ ہے, یہ ہاں عوام کے لیے اس کی ضرورت تھی اور ہم نے اس کو اس لحاظ سے ایکسپلین کر دیا. تو یہ اس کو بدعت اچھی اور بری نہ کہیں بلکہ اس کا نام ہی دوسرا رکھتے, تو وہ نام دوسرا رکھتی ہے زیادہ سے زیادہ, صحیح ہے. تو حسنہ اور سیئہ مت کہیے بلکہ ہر بدعت کو گمراہی ہی سمجھیے. پبلک انٹرسٹ کا اگر کوئی ہے ایشو تو اس کو, اور اس کی پھر دلیل وہ وہی دیتے ہیں جب قرآن نے وضاحت سے کہہ دیا کہ دین مکمل ہو گئے تو اب اس میں نئی چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بری چیز جو ہے نا وہ امور میں خراب ترین چیز اور بری ترین چیزیں کیا ہیں, وہ نئی نئی چیزوں کی ایجاد ہے, اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے. اور جو اسکالرز جن کی رائے یہ ہے, ان کے ساتھ امام شاطبی ہیں, ابن کثیر ہے, ابن رجب, ابن حنبلی وغیرہ ہیں, تو ان لوگوں کی آراء بھی اسی طریقے کی ہے. ابن حجر اسقلانی بھی یہی کہتے ہیں. ہاں, مختلف ائمہ کی اس طرح کی رائے ہے. اچھا, لیکن اصل میں اس میں پورے میں جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو تین چیزیں اگر ذہن میں رہیں, بدعت گمراہی اس وقت بنے گی جب نمبر 1 اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو. یہ سب کے نزدیک متفق ہے. اصل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قرآنی آیت یا حدیث موجود ہو, یہ صحابی کا عمل ہی موجود ہو, بلکہ یہ ہے کہ اس کے ریلیشن میں کوئی چیز کہیں موجود نہیں تھی. مثال کے طور پہ فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں آیا.
किसी हदीस में ये बात नहीं आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज के बाद हाथ उठाए और सब ने मिल के जमाअन दुआ की, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कर लेना लेकिन तमाम अइम्मा के नज़दीक इसी गुंजाइश, बिलखुसूस अगर इससे नीयत ये हो कि हम लोगों को सिखाएं कि दुआ कैसे मांगी जाती है। तो इमाम जब दुआ करता है तो लोग सीख लेते हैं, पढ़े लिखे नहीं, इतना ज़्यादा आता नहीं, उनको अच्छी तरीके से दुआ करने का तरीका आ जाए। इस दर्जे में तो ठीक, लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होने का बताया कि फ़र्ज़ नमाजों के बाद दुआ कबूल होती है, इनकरेज किया। आप खुद अस्कार तस्बीहात दुआएं करते थे नमाज के बाद के, आपने अस्कार लंबी एक लिस्ट है जो सिखाई बताई, और मामूल था साहबा का भी, अल्लाह के रसूल का भी, तस्बीहात हो रही हैं और दुआएं हो रही हैं पर नमाज के बाद जो है। ये भी दीन में मालूम है कि जो काम इज्तिमाई तौर पर किया जाए जमाअतन, वो इंडिविजुअल काम के मुकाबले में बहरहाल उसकी फजीलत है। नमाज अकेले पढ़ी जाए, जमात से पढ़ी जाए, तो जब इस तरह की सहूलत मौजूद है इज्तिमाई तौर पर किसी अमल के करने की, तो इसमें ये बहुत अच्छा एक अमल हो सकता है। और फिर आइम्मा मुज्तहिदीन की आ रहा है इस बारे में इसी तरह की, लेकिन तो ये कभी ये बिदअत नहीं, लेकिन ये बिदअत कब बन जाएगा जब लोग इस पर इसरार करने लगे कि ये ही अब सुन्नत का तरीका है, जो ये दुआ नहीं करेगा उसकी दुआ ही नहीं हुई, या उसकी नमाज ही नहीं हुई, या ये नमाज का हिस्सा है। जो लोग ऐसा नहीं करते उन पर रद्द करना शुरू कर दिया जाए कि वो गलत है, उनको तो पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, इनकी नमाज ही नहीं। ये कैसी मजे, एक साहब ने मुझसे कहा, बल्कि मैं कहा आप भाई बहुत ज़माने से नजर नहीं आ रहे मस्जिद में, आप कहेंगे मैं तो मस्जिद आना छोड़ दिया क्योंकि मस्जिद में तो दुआ ही नहीं करते फर्ज नमाज के बाद। तो ये अब बिदअत बन जाएगी कि आपने दीन में एक चीज़ ऐड की जिसकी गुंजाइश थी, लेकिन अब आपने उसको लाजिम समझ लिया, जो नहीं करता उसको आप इस बुनियाद पर रद्द कर रहे हैं, अब ये बिदअत बन जाएगी। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें तवस्सुल के मौके पर, यानी बाज़ जगह तो मसला ये होता है कि वो चीज़ बिदअत उस सूरत में बनती है कि इख्तिलाफ यानी जो पैदा होता है वो इसलिए कि एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा ही करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में या आपके उसवा में या सहाबा कराम के अमल में गुंजाइश निकलती है इन रिवायत से। दूसरे ग्रुप ऑफ स्कॉलर वो फिर ये कहते हैं कि ये जो आपने दलाइल दी है हमारे नज़दीक मजबूत नहीं है। मिसाल के तौर पर मीलाद को बिदअत कहते हैं ना, अब मीलाद एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर, दूसरे लोग कहते हैं नहीं, अब मीलाद जो है एक दिन मुतय्यन करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा कराम से या उनके बाद की 3 जनरेशंस में ये चीज़ साबित नहीं, लिखी भी नहीं, ये करते थे कि नहीं करते थे, लिखी भी नहीं, ये कहीं भी सनद हम तक पहुंची हो कि उन्होंने कभी किया। इसका इशारा क्या मिलता है? तो इस बेस पर जिनकी राय ये है कि बिदअत चूंकि इसकी असल मौजूद नहीं है तो उसको बिदअत करार दी इमाम बिन तैमिया रहमहुल्लाह ने, और इसी तरीके से और उलमा कराम ने। तो जिन्होंने उसको बिदअत करार दिया उनकी एक राय, इनके मुकाबले में दूसरे स्कॉलर वो कहते हैं कि नहीं, असल है मौजूद। तो वहां फर्क आ जाएगा जहां इस पर इख्तिलाफ हो कि ये असल है कि नहीं है। तो वो असल ज़रिए ये असल तो अगर कुरान से उतर के आई है या हदीस मुतवातिरा में सही है और उम्मत का इजमा है, फिर तो वो मसला ही नहीं है, वो तो दिन का हिस्सा है ही, उस पर तो कोई इख्तिलाफ करेगा ही नहीं। या कुरान को किताबी शक्ल में बनाना या उसकी कॉपी बना के भेजना, ये तो यानी देना लोगों को पढ़ने पढ़ाने के लिए, ये बिदअत हो तो कोई जाहिल आदमी भी नहीं कहेगा, है ना। सब जानते हैं कि दिन का हिस्सा है तो ज़रूरत है, दीन की तरवीज ऐसे ही होगी, है ना। तो इस पर तो परेशानी नहीं होगी। वहाँ परेशानी होगी जहाँ एक चीज़ वाज़ेह क्लियर कट ना हो कि इसका मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर मिलाद की जो बात हो रही है, तो जो लोग इसको बिदअत नहीं करार देते बल्कि कहते हैं नहीं इसकी गुंजाइश है, उनकी असल क्या है, उनकी दलील क्या है, वो कहेंगे जनाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा भाई आप पीर को रोज़ा रखते हैं, क्यों रोज़ा रखते हैं? फरमाया कि भाई इस दिन में पैदा हुआ, सही है, ये वो दिन है जिस दिन में पैदा हुआ। तो गोया एक दिन खास किया अल्लाह के रसूल ने, सालाना नहीं हफ्ता रोज़ा किया, बल्कि उसमें और भी फ़ज़ाइल बयान फरमाया आपने कि ये वजह है पीर को रोज़ा रखने की, लेकिन उसमें एक वजह आपने ये भी बयान फरमाया कि इस दिन में पैदा हुई, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की का मुझ पर करम है, तो उस दिन का शुक्र अदा करने के लिए ज़ाहिर बात है हम इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि अल्लाह ताला की इस बड़ी रहमत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में दुनिया में आई, हम उसको इख्तियार करें और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो एक तो ये होगा। साल का ख्याल कहाँ से आया कि फिर सालाना किया जाए, इसके लिए वो कहते हैं कि हज़रत जब ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो वहाँ एक मामूल था, आप तो पहले से रोज़ा रखा करते थे आशूरा का। यहाँ जब इन लोगों से पूछा है तो उन्होंने बताया कि भाई हम तो इसलिए रोज़ा रखते हैं अहले किताब यानी यहूद हज़रात कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के लश्कर से नजात दिलाई थी, तो उन्होंने शुक्र करते हुए अल्लाह ताला का इस दिन रोज़ा रखा। तो उसका
उन्होंने जब रोज़ा रखा तो उनकी इत्तिबा करते हुए हम भी हर साल रोज़ा रखते हैं कि अल्लाह ने हमारे नबी को बचाया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हम मूसा से ज़्यादा निस्बतन करीब हैं, हम यानी तुम्हारे मुकाबले में हमारा हक ज़्यादा है मूसा का, क्योंकि हम उनके रास्ते पर, हमारा दिन वही है, जो वो दिन लाया हमारे दिन में कोई फ़र्क ही नहीं है। तो हम भी इस सुन्नत पे अमल करेंगे, मतलब हम ये काम करेंगे। तो अब इससे क्या हुआ, एक सालाना हो गया अमल, किसी खुशी का इजहार शुक्र करते हुए अल्लाह ताला का एक दिन के तौर पर, वो रोज़े की सूरत में हो, कोई अस्कार तस्बीहात की सूरत में हो, गैदरिंग की सूरत में हो, वो बात की बात है, उस पर तो कोई इख्तिलाफ ज़्यादा नहीं करता कोई कि गैदरिंग इशू नहीं, इशू ये है कि एक दिन को मुतय्यन किया जाएगा कि नहीं। लेकिन जिनके जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो कहते हैं भाई ये इनफ नहीं है, कैटेगोरिकल नहीं है, हमारे नज़दीक ये मजबूत दलील नहीं। ठीक, आपके नज़दीक मजबूत दलील नहीं, आपके नज़दीक मजबूत दलील है, आप कीजिए, आप नहीं कीजिए। फिर वो इमाम इब्न तैमिया का वो जो इत्तिदाल वाली राय बीच में आ जाती है, बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा कि जो लोग करते हैं ये मीलाद करते तो बिदअत है, हमारी डेफिनेशन ये हम क्या कहें, उसको बिदअत ही कहेंगे, हमारी डेफिनेशन तो चेंज नहीं होती ना, हमने दीन को सामने रख के एक डेफिनेशन बनाई है, उस पर अमल करेंगे। तो डेफिनेशन से लगता तो ये कि ये बिदअत है, लेकिन जो करते चूंकि करते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है तो इसलिए उसका सवाब मिलेगा उनको। मोहब्बत करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन का ऐन है, बुनियादों में से, ऐसा जो करेगा उसका सवाब मिलेगा। सही है ना। हम इस बात, यानी ये मौजू नहीं है चूंकि, तो मैं इसलिए इस तफसीलात में नहीं जा रहा कि उसमें जो खुराफात हो रही हैं उसको क्रिटिसाइज करें, वो बिल्कुल दूसरी बात है। यानी हम नफ्स से मसला ये है कि ये उस दिन एक ख़ास दिन को सेलिब्रेट करना, और ये भी अलग बात है कि वो 12 है कि 13 है, वो भी मसला नहीं है। एक ख़ास दिन को मुतय्यन करना इसकी गुंजाइश है कि नहीं, दो राय है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो फॉलो करना चाहें कीजिए, जिस स्कॉलर पे आपका एतमाद है वो कीजिए, दूसरे को क्रिटिसाइज ना कीजिए। न करने वाले दूसरे वालों को कहें कि तुम चूंकि नहीं करते इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हें है ही नहीं, तभी तो नहीं करते, है ना। तो ये इंतहाई जुल्म होगा, क्योंकि अब आपने इसको दिन का हिस्सा बना दिया, लाजिम कर दिया कि जो ऐसा नहीं करता वो गलत है। नाउज़ुबिल्लाह, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली सारे गलत हुए, सारे सहाबा गलत हुए, इमाम सारे गलत हुए, क्योंकि इनमें से किसी के बारे में ऐसी दलील नहीं मिलती। तो जो ऐसा सोचे और इस बुनियाद पर किसी से नफरत करे और बुरा माने कि ऐसा नहीं करता, ये क्यों नहीं करता, अब आपने दीन में ये शरीयत साजी करना शुरू कर दी, अब ये बिदअत बनेगा। जो शख्स ऐसा फील करता है या ऐसा समझता है कि ऐसा न करने वाला गुनाहगार है, या वो एक नेक काम को नहीं कर रहा और गलत है, खतरनाक है, उसको मोहब्बत नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब ये गुमराही की तरफ गया, बिदअत की तरफ गया, क्योंकि अब इसने इसको दिन का हिस्सा बनाया जो कि नहीं था। इससे पहले मुबाह था, जायज़ काम था, अच्छा नेक काम था, कर सकता था अपनी डेफिनेशन के मुताबिक, लेकिन अब उसने उसमें बियॉन्ड द लिमिट जाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से यहाँ वाले लोग अपनी डेफिनेशन के दर्जे में रहते कि भाई डेफिनेशन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वही नहीं है, अल्लाह ने नहीं आसमान से उतारा कि ये ऐसे है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए हम इसको ऐसा समझते हैं, इसलिए हम ऐसा करेंगे। ये बिल्कुल वही सहाबा का अमल, दोबारा वो वाक़या बार बार, असल में वही असल है इन सारी बातों को समझने के लिए, वो बनी कुरैज़ा वाला वाक़या कि जब सहाबा में ये हुआ डिस्कशन कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो असर की नमाज न पढ़े मगर बनी कुरैज़ा में पहुंचकर। ये अल्फाज है कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि असर की नमाज वहीं बनी कुरैज़ा में जाके पढ़े। मामूली बात तो नहीं, एक स्टेटमेंट सिंपल से नहीं, बल्कि उससे पहले बड़ी एक उसमें आपने एक जान डाली है बात कह करके, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता है, मतलब ये ईमान जिस अगर है तुम्हारा तो नमाज वहीं पढ़ना, खत्म, इससे आगे आपने कुछ नहीं फरमाया। फेस वैल्यू पे तो उसका मतलब यही है, अब 6 दिन बाद भी वहां पहुंचो तो असर वहीं पढ़ना, सही है। लेकिन ये यहाँ से निकले हैं, थके हुए थे, 1 महीने का मुहासरा किया हुआ था, जानवर थके हुए थे, परेशानी जो भी हालात में चले, बहरहाल नहीं पहुंच पाए, दिन ढलने लगा, असर का वक्त खत्म होने, मगरिब का वक्त शुरू होने वाला, आज समझ लें आधे घंटे में मगरिब हो जाएगी। तो साहबा ने कहा नमाज पढ़नी चाहिए, कभी अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं याद आया, आपने फरमाया था कि नमाज वहाँ पढ़ना, हम तो वहीं पढ़ेंगे। उसने फरमाया कि ठीक। उन लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था कि इतनी तेज पहुंचो, इतनी तेज जाओ कि तुम असर वहां पे पहुंच कर पढ़ लेना, ऐसा टाइम मिले कि तुम असर तक वहां पहुंच जाओ। अब चूंकि हम थकावट की वजह से न पहुंच पाए तो उसका मतलब तो नहीं कि हम नमाज निकाल दें, अल्लाह के रसूल का ये मतलब तो नहीं होगा कि हम नमाजें छोड़ दें। अब तो आप जिहाद में जब के दौरान नमाज पढ़वा रहे हैं तो ये सफ़र की वजह से नमाज छोड़ने को कह देंगे, क्योंकि नमाज सफ़र में कसर की जा सकती है, जो भी तफसील उसकी है। ये सब सोच के एक ग्रोह ने सहाबा के वहीं नमाज पढ़ी असर की, और दूसरा ग्रुप चलता रहा, वहाँ पहुँच के उन्होंने वहाँ पढ़ी बड़ी देर में जाकर सूरज वगैरह गुरु होने के बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की, बताया आपसे, जब आपसे फरमाया असब तुम तुमको भी सही, तुमने भी ठीक किया, तुमने भी ठीक किया, दोनों को आपने
کہا کہ دونوں ٹھیک. اس لیے کہ مطلوب یہ نہیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے، جواب تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ ایک ہی ہوگا صحیح، لیکن شریعت اس بارے میں جاتی نہیں. شریعت کا آپ سے تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جیسا سمجھا اپنے علم کے مطابق اس پر عمل کیا کہ نہیں. اسی لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں، الحمدللہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، ان کو یہی کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا علم ان کو یہ بتاتا ہے کہ یہ بدعت ہے. وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے اس کا فیصلہ اللہ کریں گے. اگر ٹھیک ہے تو 2 ثواب، غلط ہے تو 1 ثواب. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی مجتہد امام جو کوالیفائڈ ہے، جب وہ اس طرح کی رائے رکھے کسی مسئلے پہ سارے دین کو سامنے رکھتے ہوئے نیت کے خلوص کے ساتھ، اور پھر ایک رائے پر آئے اور اس کی وہ رائے ٹھیک ہو تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، محنت کرنے کا اور صحیح جواب پانے کا. اور اگر وہ غلط ہو تو 1 ثواب ملتا ہے. گناہ ملتا ہی نہیں، تو گناہ کا تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ. اس معاملے میں اجتہاد کرنے کے معاملے میں جیسے میں پہلے اس کی مثال دے چکا ہوں، ڈاکٹری میں جیسے ہوتا ہے، جب میں نے علاج کیا، میرے علاج سے اگر کسی کو نہیں فائدہ ہوا تو میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ایز لانگ ایز کہ میں کوالیفائڈ ہوں. آپ اگر علاج کریں گے کسی کا، اگر ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ اتفاق سے صحیح بھی ہو گیا تو صحیح ہونے پہ آپ کو تعریف تو کر دیں گے آپ کی، لیکن بعد میں آپ کو جیل بند کر دیں گے. کیوں کہ آپ نے علاج کرنے کی زحمت کیسے دی، ہمت کیسے دی. آپ تو کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں تھے. یہ کام کرنا آپ کا خطرناک تھا. صحیح ہے نا، ٹھیک ہے تکے میں صحیح ہو گیا، آئندہ غلط ہو جائے. تو یہ عمل کرنا آپ کا جرم تھا، لو توڑا آپ نے. اسی طرح غیر مجتہد جب کوئی فتویٰ دیتا ہے اور لوگوں کو بدعتی اور مشرک اور کافر کہتا ہے بغیر علم کے، تو وہ اپنے لیے بڑی خطرناک سزا تجویز کرتا ہے. اس لیے عام آدمی کو ایسی باتوں سے بہت احتیاط کرنا چاہیے. یہ علماء کا کام ہے. آپ سمجھتے بھی ہوں، اس لیے کہ آپ کے امام نے یہ کہا، آپ کے شیخ نے یہ کہا، آپ کے استاد نے آپ کو یہ بتایا، عالم دین نے، ٹھیک ہے اپنے دل میں رکھیے، خاموش رہیے. جو کرتا ہے اس سے نہ اس بیس پہ تعلق توڑیے، نہ اس سے برا مانیے، نہ اس کے ساتھ. یعنی میں نہیں کرتا، میں اس طرح سے مولد میں انڈیویجول اس ڈے میں نہیں جاتا. ہم سارا سال مولد میلاد کرتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں. مجھے میری اپنی نعتیں لکھی ہوئی ہیں الحمدللہ، پڑھتا بھی ہوں، شوق ہے مجھے، اور یادیں بہت بے تحاشا یاد ہے. لیکن خاص دن کو احتیاطاً نہیں کرتے. کوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو بدعت سمجھتے. جو نہیں کرتے، جو کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں. شیخ احمد صاحب کے ساتھ جب میں ہوتا ہوں، چونکہ وہ کرتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں جہاں کبھی اپنے ساتھ، تو کہتے ہیں میرے ساتھ پڑھیں، تو ہم دونوں مل کر پڑھ لیتے ہیں. مجھے اس کو کوئی اعتراض بھی نہیں کہ میں اس پہ پڑھوں اگر وہ کبھی موجود ہوں. تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. محبت، کیونکہ اگلا جو کر رہا ہے وہ بھی محبت سے کر رہا ہے. آپ اگر احتیاط کر رہے ہیں تو آپ بھی یہی سوچ کے کر رہے ہیں کہ یار دین کی حفاظت اور محبت، دونوں طرف خلوص. اس کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں گے نا تو آپ کو کبھی مسئلہ پیدا نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد دل کو اپنے طرف سے خیالی طور پر چیرتے ہیں، اور وہاں پر اگر یعنی خرابی نیت نہ بھی ہو تو وہاں ڈال دیتے ہیں اپنے طور پر، اور کہتے ہیں دیکھو کتنی بڑی خرابی نیت ہے، اس آدمی کے نفس میں شیطان دھوکہ دے رہا ہے، بد نیت ہے یہ آدمی. اپنے طور پر سارے گمان کر کے اور پھر اس کے بارے میں فتوے دے کے، گمراہ قرار دے کے، بدعتی قرار دے کے لڑائی کرنا شروع کر دیتے. امت میں پھر اسپلٹ بڑھتی چلی جاتی ہے. صحیح ہے. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر اختلاف رائے ہو اجتہاد کی بنیاد پر، یہ اجتہاد ہے، یعنی قرآن کے طریقے سے یا وحی کی صورت میں، نہ ان کو پتا ہے کہ یہ بات حق ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ یہ بات حق ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ بدعت نہیں ہے، ان کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کلام اترا مجھ پر. وہی آئی ہے کہ ان پر جو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے ان پر وہی آئی ہے کیا؟ ظاہری پتہ دونوں پر نہیں، دونوں کا اجتہاد. اس اجتہاد میں صحیح ہونے کا امکان بھی ہے اور غلطی کا بھی. جو اس کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں اور غلطی کا امکان رکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں، وہ اختلاف، علمی اختلاف تو کر لیتے ہیں، اس سے آگے اختلاف نہیں کرتے. باقی عمل میں محبتیں کرتے ہیں. ادھر بھی یہی حال ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہوتا ہے. جو سمجھدار قسم کے ائمہ ہیں وہ جانتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے چلتے ہیں. تو یہ محبتوں کے طریقے ہیں، ایسے ہی رہنا چاہیے امت میں. بدعت کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ اکثر ایسے ہی ہیں. کچھ کے بارے میں اب مثال کے طور پہ تیجا، 10واں، 15واں، 20واں اور 40واں، یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے دی، ہمیں نہیں دی. ائمہ مجتہدین نے دی، نہیں دی. یہ ہمارے ہاں کی ذرا ریلیٹیولی لیٹر ایک ہے، کہنا چاہیے کہ ایک ترتیب ہے جو بھی ہے لوگوں نے بنائی. اب اس ڈیفینیشن کے مطابق یہ بدعت قرار پائے گی، کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس اصل موجود نہیں. لیکن اس میں اصل موجود ہے. ایک طرف ہم یہ کہیں گے کہ اصل کیا موجود ہے اس کے لیے؟ اصل یہ ہے کہ سوگ کرنا 3 دن کے لیے تو ویسے گنجائش ہے اس کو، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اور اس کے بعد بھی نہیں کوئی باقاعدہ فارملی رونا دھونا نہ ہو، لیکن جو مردہ ہے اس کو ایثار و ثواب کرنے کے لیے کبھی بھی جمع ہو جانا. میرے ابا کا انتقال 2008 میں ہوا، میں کہوں چلو اب بیٹھ کے تھوڑی سی دعا کر لیتے، سورہ فاتحہ پڑھ کے ابا کو پہنچا دیتے. جب چاہیں صبح شام، جس وقت بھی دل چاہے، کوئی مسئلہ نہیں. صحیح ہے، دعا کر لیں کسی بھی مردے کے لیے صبح شام، کسی بھی حالت میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں.
چونکہ ایصال ثواب کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے مردے کے لیے اور اس کی گنجائش موجود ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ مسئلہ کب ہوتا ہے تو اب آپ پہلے دن کریں، دوسرے دن، تیسرے، پانچویں دن، 10ویں دن کریں، جب بھی کریں۔ لیکن اگر اب پرابلم وہاں ہوگا جب آپ کہیں کہ یہ تیسرے دن کرنا ہی لازم ہے، جو نہیں کرے گا وہ غلط ہوگا، تو اس کے لیے بلکہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود یہ کہتے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں۔ اب یہ تشدد، یہ آپ کو اپنی لمٹ کراس کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کسی چیز کو دین بنا دیا کہ یہ ایسا کرنا ہی لازم ہے، نہیں کیا تو برا مانا جائے گا، تب ٹھیک ہے۔ آپ کہیں کہ ایسا کر لو بھائی، ایک کلچر ہے، اس لیے کہ اس طرح سے ہو جاتا ہے، لوگوں کے پاس ٹائم ہے، ہم اس کو کوئی اہم اس طرح سے نہیں سمجھتے کہ آج کے دن ہی کرنا لازم ہے، لیکن چونکہ ایک ترتیب بن گئی ہے اور لوگ عموماً تیسرے دن فارغ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں، اس حوالے سے چھٹی لے لیتے ہیں، کامن نالج ہو گئی ہے، غلط العام کہہ لیں اس کو، تو اب آج ہی بیٹھ کے ذکر کر لیا جائے تو اس بنیاد پہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو لازم سمجھا جائے، اسی کو سنت سمجھا جائے، جو نہ کرے اس کو غلط سمجھا جائے، اب یہ بدعت بن جائے گی۔ تو ایک گروہ لوگوں کا ایسا ہوگا کہ جو اس میں احتیاطاً ان چیزوں کو اوائڈ کرے گا۔ تو میرے ایک استاد صاحب وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، قرآن پڑھنا نا اپنے طور پہ پڑھ کے بخش دو، قرآن خوانی بھی ایون قرآن خوانی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے اجتماعاً ساتھ پڑھنا نہیں ثابت، لیکن بالکل اس کی اصل موجود ہے۔ قرآن الحمدللہ دین کا کتنا اہم شعبہ ہے جس کے اندر آپ یعنی اس سے آپ اللہ کی رحمت، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور امت کے چاروں اسکول آف تھاٹس کے اندر قرآن سے بھی توسل کرنا بالکل قرآن سے بھی ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے۔ قرآن پڑھ کے بخشنا، اہل حدیث حضرات یا جن کو سلفی حضرات کہتے ہیں، غیر مقلدین بھائی ہمارے، وہ ان کے نزدیک اس کو وہ بدعت قرار دیتے ہیں، وہ ان کی وہی ڈیفینیشن چونکہ ہے کہ اس کی اصل ان کو نہیں سمجھ میں آتی، وہ نہیں مانتے کہ وہ اصل ہے، ٹھیک ہے، ان کی ڈیفینیشن کے مطابق ہوگی بدعت، وہ سمجھتے رہا کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہم بھی کوئی یہ نہیں کہتے کہ دین کا عین ہے، اگر نہیں کرو گے تو گناہ ملے گا، ہم کہتے ہیں یہ بالکل دین کی اس کے لیے اصل موجود ہے، دین میں اس کے لیے اصل موجود ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جیسا میں نے کہا چاروں اسکولوں میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ سب کے نزدیکی، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا جو ہے وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے نزدیک اس کی نہ صرف کی گنجائش ہے بلکہ ایک اچھا عمل کرنا چاہیے۔ جو نہیں کرتے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں، وہ کوئی ظاہری بات ہے وہ بدنیتی سے نہیں کرتے، ان کو کوئی قرآن سے چڑھ نہیں ہے۔ یہ جو ہماری مینٹیلٹی ہو گئی نا کہ جو ہمارے مزاج کے چونکہ مخالف ہے یا ہمارے عمل کے مخالف ہے، ہم نے اس کو جو کرتے ہوئے دیکھا، اس سے پہلے تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، یہ چیز بالکل مختلف ہو گئی، اب اٹھا کے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، لڑنا شروع ہو گئے اس سے۔ یہ سراسر ظلم ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہم جب ظالم بن جاتے ہیں تو دوسرے اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم کرنے والے مسلط کر دیتے ہیں۔ تو جو ہمارے حکمران ہم پر ظلم کرتے ہیں جگہ جگہ اسلامی ممالک میں جو ہو رہا ہے، تو اس میں شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ہم اپنے طور پر خود بڑے ظالم ہیں اپنی زبانوں کے مقابلے میں۔ ہم فتوے جو جب دیا کرتے ہیں لوگوں پہ، حالانکہ ہم اس کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کچھ کرتے ہوئے، اٹھا کے جھٹ ایک فتویٰ لگاتے ہیں، تو یہ ہمارا جو ظلم ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم پر ہمارے اوپر ایک ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح کے جتنے بھی اعمال ہیں، بہت ساری مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں اور سیکھی جا سکتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو دین میں جس کی گنجائش بنتی ہو، اس گنجائش کو، مثال کے طور پہ یہی ہمارا جمعے کا جو درس ہے، پہلے ہم عربی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں ایک ٹاپک کو، اس کو پھر اب سلسلہ یہ بھی ہوگا کہ ریکارڈ کر کے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ یا آن لائن بھیج رہے ہیں۔ اب اس کو ہم ریگولر کر رہے ہیں پچھلے 4-6 ہفتوں سے، لازم کر لیا، ایک دن متعین کر لیا۔ اس کی دین میں کیا اصل ہے؟ بدعت ہونی چاہیے نا قاعدے سے، لیکن کوئی بھی اس کو بدعت نہیں کہے گا، اس لیے کہ ہم اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، ہم اس کو لازم نہیں سمجھتے، ہم اس کو مباحات میں سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی ترویج، دین کی تعلیم ہر انسان کو کرنا چاہیے، جس کو جتنا جتنا علم ہے وہ اپنے بلغوا انی ولو آیا کے درجے میں، ظاہر بات ہم نہ میں اسکالر ہوں، نہ میں عام سا طالب علم ہوں، تو اپنے اس تھوڑے سے علم کو آپ جیسے اپنے جیسے پڑھے لکھے دنیاوی طور پر، لیکن دینی طور پہ شاید اتنے زیادہ نہ بھی ہو پڑھے لکھے، ان کو وہ بات بتا کر ایک ایسی سطح پر لے آیا جائے کہ اب ان کو علماء کرام کی بات سمجھنا سیکھنا آسان ہو جائے۔ یہ مطلوب ہے۔ اب جب وہ کنیکٹڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ علماء کرام سے، یا اس قابل ہو جائیں گے ان کی بات کو سمجھ لیں اور سیکھ لیں، تو امید یہ ہے کہ آپس کے اختلافات اور افتراقات جو ہیں وہ دور ہو جائیں کہ کم ہو جائے، کم از کم۔ ہم اس درجے میں تھوڑی سی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ امت کو جوڑا جائے، اور اللہ کا بہت فضل ہے کہ ہمارے پاس ہر قسم کے مزاج کے لوگ ہیں، مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں، ہے نا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہی ہم وہ سچ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں رہے، اپنے دلوں میں نفرت پیدا کریں۔
उम्मत को जोड़ना या उम्मत के साथ जुड़ना ये इस वक्त की मैं समझता हूँ बहुत अहम ज़रूरियात में से है। ये सारे खेल बहुत चल चुके हैं, शैतानी अमल बहुत हो चुका कि उम्मत ने एक दूसरे को फाड़ के रखा हुआ है, कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बाप बेटे को नहीं देखता कि जरा वो फला अमल करते हो ये बिदअत है, तो ताल्लुकात ख़त्म हो रहे हैं लोगों के। मुसलमान एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और पूरी इसकी वजह से बेबरकती जो उम्मत में है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसमें थोड़ा सा और प्रोएक्टिवली इनको सुने समझें और जो सवालात हो उनको बल्कि पोस्ट कर दें। वेबसाइट जो है tadris.wordpress के नाम से, उस पर जाएँ तो वहाँ पे आपको कुछ वीडियोस पड़ी हुई मिल जाएंगी, उनको देखें और उस पर क्रिटिसाइज़ करें। जो सवालात आपको ठीक जो लगे वो भी करें और दयानतदारी के साथ सीखने की नीयत से और सिखाने की नीयत से, ताकि हम एक दूसरे से सीख सिखा सकें और चीज़ों की इम्प्रूवमेंट आती जाए। बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं, उनकी इस्लाह की जा सकती है। ये जो कुछ मैं कहता हूँ ये उम्मन उलमा कराम की किताबों से जो मैंने पढ़ा है अपने और जिन शयूख से जिनसे मैंने पढ़ा है उनकी बातों को लेकर पेश करना सारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ताकि आम आदमी उसको समझ ले किसी दर्जे में। और अल्लाह ने चाहा तो उससे हम उम्मीद है कि उलमा कराम की जब मजालिस में बैठेंगे तो हमें इसका फ़ायदा होगा और उम्मत को सिखाने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात होता है कि शायद उलमा कराम के पास, मैं नहीं समझता कि उनको अपना वक्त इस तरह की सिंपल बातों में, इस तरह की बातों में मज़ीद कितना वो वक्त लगाएंगे। वो समझाने की कोशिश करते हैं, हम सुनते समझते नहीं कि उनकी बाज़ औक़ात ज़बान मुश्किल होती है, बाज़ औक़ात उनका जो है वो इल्म इतना टेक्निकली हाई होता है कि आम आदमी उसको समझ नहीं पाता। तो शायद हम जैसे जो दरमियाने किस्म के जो लोग हैं जो उल्मा से पढ़ते हैं वो आगे आवाम को बता दें तो शायद उसका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। एक कोशिश है, नीयत है, गलत भी हो सकती है, हो सकता है इसका कोई फ़ायदा ना, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें नीयत बिल्कुल ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि सारे लोग, तमाम मक़दार फ़िक्र के लोग आपस में अपने इख्तलाफ़ात को रखें। यानी ये बिल्कुल ना, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत है उम्मत में कि लोग अपने इख्तलाफ़ात सारे मिलकर एक हो जाएं, ऐसे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। सब लोग अपने अपने जो बरेलवी हैं वो बरेलवी रहें, जो हनफी हैं वो हनफी रहें, जो देवबंदी हैं वो देवबंदी रहें, सलफ़ी सलफ़ी रहें। एटीट्यूड को तब्दील कर लें, अपने रवैयों को तब्दील कर लें, अपने मामलात को दुरुस्त कर लें, अल्लाह के साथ भी बंदों के साथ भी। फिर आप देखिएगा कि उम्मत में खैर आएगी, बरकत आएगी। क़ुल क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।